हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये 21 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ओवर वाटर रिसोर्सेज, यानी हमारे जो है जल संसाधन क्या है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज जो है हम जल संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जल संसाधन किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, watershed development. There is the next is the most important, watershed development. The meaning of a watershed refers to an area where the water flow toward a point. The planned use of this water can be deliver better result. You know that there is an important point here. The meaning of watershed refers to on the area where the water flow toward a point. The planned use of this water can be deliver better result. Related area may be a village or a group of village in their form of unity. The unit is an important. All kind of land like agricultural, wasteland and forest may be included in this area. You know that there is important here. All kind of land like agriculture, wasteland and the forest may be included in this area. A maximum use of land is the possible by adopting a watershed program. The overall development with the proper utilization of the water in the area in a consider to be a watershed development. That is important. And watershed development here a point. The first point here, benefit of watershed development. That is important here. The following benefit can be achieved by the watershed development here. A first here, supply of water for drinking and irrigation here. And secondly here, increase in a biodiversity. And third here, loss of acidity in the soil and free for a standing water. And next year, increasing in the agriculture production and productivity. Decrease in the cutting of forest, and next year increasing in the standing of living, and the next year increasing in employment. There is an important part here. The next year is important here, the result of watershed development. There is the most important here. The result of watershed development, not with an understanding a hug amount of expenditure made by the government. There is important $2 billion by 2000. There is important here expenditure of made by government $20 billion by 2000. On the watershed development, we have not been able to achieve our desired result so far. There is important here use of money, but it's not a desired result so far. And there is a following factor are responsible for this. The first here, lack of scientific thinkings, and secondly here, imperfect techniques. And the next year, indifferent attitude of local population. And the next lack of coordination among the various departmental agency and absence of independent ministry. There is a most important factor of fail of this program. The next year, river
linkage. There is a most important rivers link for the each other. The large area of country suffer from to the drought and the floods. Drought and flood are two sides of same coin. You know that is an important point. Drought and flood are two sides of same coin. National Water Development Authorities was constituted in 1982 to solve this problem. The main object of constitutions was to identify only the national water network. Finally, National Water Development Authorities is identified linkage of 30 rivers. The large rivers have mainly been included in this program. Authorities has recommended starting of the work on 6 places of the river linkage, and there is a completion has to be carried out of the 3 stages. The first stage here, in the first stage, mainly a peninsular river is Mahamdis and Godavari, Krishna and Kaveri has been included. And second stage, in the second stage, linkage of the small river basin of Peninsula India has been to the recommended. And Ken, Betava and the Tapi is rivers are included in this. And third stage here, in this third stage, there is a provision for a linking or tributaries of Ganga and Brahmaputra with one to another. The next here, benefit of river linkage. There is the most important point here, benefit of river linkage. All around the development on area is possible by joining of basin. The irrigation of about 250 lakh hectare additionally is agriculture area is possible by surface water after the success of this program. That is important here. The 250 lakh hectare additionally agriculture area is possible by surface water after the success of this program. The underground water will be available to be irrigate of additional agriculture area about 100 lakh hectare. With the result of irrigated area will increasing from 1,130 lakh hectare to the 1,500 lakh hectare. Addition of hydroelectricity of about 340 lakh kilowatt will be generated. And besides this is a benefit, many others benefit like flood control, water transport, water supply, fishing, removal of acidity from the soil and control on the water pollution will be also be achieved. But this benefit can be easily achieved. Much money of time has been spent on this project. According to an estimate, a large is a sum of rupees 560,000 crore are required to complete this project. There is a most important a sum of rupees here. कहते हैं अगर देखा जाए यहाँ पर अगले पॉइंट की बात, जल संभर विकास। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जल संभर विकास। यहाँ पर कहते हैं जल संभर का अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है और इस जल का जो है योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग अच्छे परिणाम देने वाला बन सकता है। संबंधित क्षेत्र एक इकाई के रूप में एक गांव हो सकता है अथवा गांव का एक समूह भी इसमें हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि, बंजर, वन आदि सभी प्रकार की भूमियां शामिल हो सकती है। जल संभर कार्यक्रम में भूमि का अधिकतम उपयोग संभव है। देखिए जल संभर कार्यक्रम में भूमि का अधिकतम उपयोग करना संभव है और इस प्रकार किसी क्षेत्र जो है विशेष में जल के हर संभव उपयोग को ही जल संभर विकास कहा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए तो कहते हैं जल संभर विकास के क्या लाभ हो सकते हैं। कहते हैं जल संभर विकास के कुछ लाभ भी हैं। ये लाभ से विकास के निम्नलिखित लाभों प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लाभ यही होता है कि पानी और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाती है, जैव विविधताओं में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जलाक्रांति एवं लवणता का हर्ष भी इससे काफ़ी प्रभावित होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसके लाभ हैं। साथ में देखा जाए तो कहते हैं इसका जो है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इससे वनों के कटाव में काफ़ी कमी आती है, जीवन स्तर पर उठना, रोजगार में वृद्धि, स्थानीय लोगों की सहभागिता से आपसी मेल जोल काफ़ी बढ़ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जल संभर विकास से अपेक्षित परिणाम क्या मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहते हैं जल संभर विकास परियोजना से सभी तक जो है इच्छित परिणाम नहीं मिल सका है। तो ये बहुत ही दुखदायी परिस्थिति है कि जल संभर विकास के अपेक्षित परिणाम अभी हमें नहीं मिल पाए हैं, जबकि भारत सरकार ने इसमें
2000 तक विभिन्न मंत्रालय के माध्यमों से जल समृद्धि विकास कार्यक्रम में $2 अरब खर्च कर चुका है। देखिए पैसे यहाँ पर बहुत खर्च हुए हैं, लेकिन देखा जाए जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो परिणाम चाहिए, वो हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और इसके कुछ कारण भी हैं। सबसे पहला कारण तो यही आता है वैज्ञानिक सोच का अभाव। यहाँ वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन का उपयोग नहीं किया गया। दूसरी बात था तकनीकी कमी। तकनीक की भी बहुत कमी है। आप सोचिएगा कि आधुनिक युग में तकनीक की कमी कैसे हो सकती है। कहते हैं कुछ चीज़ों के लिए तकनीक जो है अभी भी पिछड़ी हुई है। उसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग की कमी। स्थानीय लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया सरकार को। इसकी वजह से जल समृद्धि विकास जो है बहुत ही बुरा परिणाम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। कहते विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग का अभाव, यानी विभागों के बीच जो थी आपसी सहयोग बिल्कुल ही नकारात्मक थी, जिसकी वजह से जो है जल समृद्धि विकास जो कार्यक्रम अपनाई गई थी, $2 अरब खर्च हो जाने के बाद भी इससे जो है अच्छा परिणाम नहीं मिला। उसके पश्चात है नदी संयोजन। देखिए नदी संयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यानी नदियों को आपस में जोड़ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू के समान होता है, क्योंकि दो विस्तृत क्षेत्र सूखा एवं बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। तो सूखा और बाढ़ जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए कहते हैं अधिक वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है और वर्षा न होने से सूखा होता है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का एक ही है लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक सूखा एक बाढ़ है। इस समस्या के हल के लिए जो है 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का संगठन किया गया और इस गठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जल के जाल की पहचान करना मात्र था। अंततः राष्ट्रीय जो है जल विकास अभिकरण ने 30 नदी जुड़ावों की पहचान भी की और इस कार्यक्रम में बड़ी नदियों को जो है प्रमुखता से शामिल किया गया। अभिकरण में से 6 जुड़ाव स्थलों पर जो है काम करने की संतुष्टि की गई और 3 चरणों में इन्हें पूरा करने की बात भी कही गई। इसका पहला चरण तो यही था कि प्रथम चरण में प्रमुख जो है प्रायद्वीपीय नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी को शामिल किया गया, जिनको आपस में जो है जोड़ा गया। दूसरे चरण को ये साबित किया गया कि ये के अंतर्गत जो है प्रायद्वीपीय भारत की छोटी छोटी नदी द्रोणियों को एक दूसरे से जोड़ने की बात रखी गई, जिसमें केन, बेताब तथा पार तापी नदियाँ शामिल थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और तीसरी में चरण में जो था गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रावधान रखा गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष नदी संयोजन से लाभ। आखिर नदी संयोजन से क्या लाभ हुए? कहते नदी द्रोणियों के आपस में जोड़ने से बहुमुखी विकास संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नदियों को आपस में जोड़ने से बहुत फायदा होता है। इससे बाढ़ भी नहीं होती और सूखा भी नहीं रह पाता है। और इस कार्यक्रम की सफलता से पुष्टि जल द्वारा जो है 250 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर सिंचाई संभव हो सकेगी। कहते हैं 100 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के सिंचाई के लिए भूमिगत जल उपलब्ध हो सकेगा। अंततः संचलित क्षेत्र जो है 1130 लाख हेक्टेयर बढ़कर जो है 1500 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इससे जो है कृषि क्षेत्र भी बढ़ेंगे। कहते हैं 340 लाख किलो वह जो अतिरिक्त जल जो है विद्युत का निर्माण भी करेगा, यानी 340 लाख किलोवाट अतिरिक्त जल विद्युत का निर्माण होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। इन लाभों के अतिरिक्त कई और भी लाभ मिल सकेंगे, जैसे बाढ़ नियंत्रण भी होगा, जल परिवहन भी होगा, क्या कहते हैं जल पूर्ति, मत्स्यान क्षारीयपन का दूर होना तथा जल प्रदूषण नियंत्रण शामिल है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये परियोजना जो है लाभान्वित कर सकता है, परंतु इन सभी लाभों के सहज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये परियोजनाएं बहुत ही व्यय संग एवं जो है समय साध्य है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं 560 लाख करोड़ रुपए की विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी। तो कहते हैं यहाँ पर धनराशि बहुत अधिक है, तो बहुत ही दुष्कर्म कार्य भी है, लेकिन इस कार्यक्रम के कारण जो होगा बहुत से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इससे जो है ना तो बाढ़ आएगी न ही सूखापन क्षेत्र रहेगा। है बहुत बड़ी परियोजना लेकिन है बहुत ही जग कल्याण लायक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने चर्चा किया, बहुत ही जरूरी बातों पे जो है एनालाइज किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
कहते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए बातें जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको आपको समझना चाहिए और इम्पोर्टेंट बातों को नोट कर लेना चाहिए, जो कि ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा तो अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा देखेंगे, ये आपने कर्तव्य पूरा किया, इसलिए त्रिपाण सेंटर हमेशा आपका आभारी रहेगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको होम पेज मिल जाएगा। अगर बाद में कोई वीडियो रिसर्च करना चाहोगे तो दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र नहीं आएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है होम पेज पे सारे वीडियो उपलब्ध होंगे, साथ में आपको पता है कि प्ले लिस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो जो होंगे सिलेबस 22 भी होगा और क्लास 22 भी है। तो यहाँ पर 8th से लेके MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।